کو بتائیں گے کہ اسلامیات سیریز جو ہے یہ کتابیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اسلام کا مکالمہ، دی جرنی آف اسلام، اسلام کا سفر اور دی جرنی آف اسلام کلاس 4، تو یہ جو کلاس 1 سے لے کے 5 تک کا ایسٹ کا نصاب ہے اسلامیات کا، اس کو پڑھانا کیسے ہے۔ تو اس سیشن میں ہم آپ کو اس کی ٹریننگ دیں گے، ٹیچرس ٹریننگ سیشن ہے کہ آپ نے اسکول میں بچوں کو اسلامیات کیسے پڑھانی ہے۔ اچھا، اسلامیات کی جو کتابیں ہیں، اسلام کی جو یہ سیریز ہے ایسٹ کی، یہ بہت ہی یونیک سیریز ہے، یہ بہت ہی اسپیشل بکس ہیں، کیونکہ یہ قرآن کے اوپر بیس کر کے عقیدہ اور جو اسلام کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ یہ صرف چند رسومات پہ مبنی نہیں ہے، یا یہ خالی صرف عبادات پہ مبنی نہیں ہے۔ عبادات کا اس میں ذکر ہے، بتایا ہے کہ نماز کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، لیکن جو اسلام کی روح ہے تو ان بکس میں اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ بچوں کو اسلام سے محبت پیدا ہو، نمبر 1، اور اسلام کو سمجھنے کا جذبہ، اسلام کو سمجھنے کا مادہ پیدا ہو۔ یہ تو اس کا تھوڑا سا ہو گیا بیک گراؤنڈ۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو سیریز ہے یہ 3 پارٹس پہ، ہر لیسن، ہر ایک لیسن 1 to 5 3 پارٹس پہ مشتمل، ہر کے 3 پارٹس۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو پہلا پارٹ ہے وہ ہے اس کا، اس کو ہم کہتے ہیں اس کی عبارت، جو اس کا ٹیکسٹ ہے، کیونکہ یہ کلاس 1 کی ہے تو آپ دیکھیے کہ اس میں ٹیکسٹ بہت کم ہے۔ یہ ٹیکسٹ ہے، چھوٹا سا یہ ٹیکسٹ ہے۔ دوسرا پارٹ جو ہے اس کا، وہ آخر میں ایک حدیث یا کوئی حدیث اور یا نہیں بلکہ اور ایک طریقہ یا ایک عبادت یا ایک عقیدہ یا ایک دعا دی گئی ہے۔ تو یہ عبارت ہے، اور اس کے آخر میں پھر یہ ایک حدیث دی ہوئی ہے آسان الفاظ میں، اور پھر یہ ایک ہدایت دی ہے، بچوں کو آداب زندگی سکھائے گئے ہیں۔ جب ہم اسی طرح دوسرے پیج پہ آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر یہ ایک ایکٹیویٹی ہے۔ یہ 2 پیجز ایکٹیویٹی کے دیے گئے ہیں جو کہ اس پچھلے پیج سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ تو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ اس کتاب کے 3 پارٹس ہیں، ایک ہے عبارت، پھر ایک حدیث، پھر ایک آداب زندگی، اور پھر اس کے مطابق ایک مشق۔ اگر آپ اسی طرح کوئی بھی اور کلاس 3 کی کتاب دیکھ لیں تو یہ اس کی عبارت ہے، یہ اس کی عبارت ہے، یہ تو پہلا چیپٹر، یہ عبارت چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ اس کی مشق ہے، یہ عبارت ہے، یہ اس کی مشق ہے۔ اچھا، اگر ہم یہ دیکھیں اس کے آخر میں یہ ایک آیت دی گئی ہے، یہ اس کی مشق ہے۔ اگر ہم کلاس 5 کی کتاب پہ آئیں یہ عبارت ہے، اور پھر دوسری چیز اس کے اندر مفید معلومات، آپ کیا کہیں گے، یہ دوسرا پارٹ ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ پہلا پارٹ ہو گیا اس کی یہ عبارت، دوسرا پارٹ ہو گیا اس کا مفید معلومات، آپ کیا کہیں گے، اور تیسرا پارٹ ہے یہ ایکٹیویٹی جو کہ ہے اسماء الحسنی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ اسماء الحسنی، تو یہ اس طرح تیسرا پارٹ ہو گیا۔ یہ اسی طرح دیکھیے یہ عبارت ہے، یہ پہلا پارٹ ہے،
फिर इसके बाद मफीद मालूमात आप क्या कहेंगे दूसरा पार्ट है, और ये सुबाए हुस्ना तीसरा पार्ट है। तो हर किताब में 3 पार्ट्स हैं, किताब जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई। अब इसका तरीका ये है कि आपको हर बुक का ये प्लानर आपको मिलेगा, उसके अंदर हमारी वेबसाइट पे ई स्टार्ट एजुकेशन पे ये प्लानर मिलेगा। आप क्लास वाइज जाएं और किताब जो भी आपने सेलेक्ट करनी है, जो भी आप किताब पढ़ाती हैं, आप उसको खोलें और उसमें से ये प्लानर डाउनलोड कर लें। ये प्लानर आप डाउनलोड कर लें। ये देखिए इसमें चैप्टर नंबर, चैप्टर 2, चैप्टर डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, इसमें सारा का सारा ये डे वाइज इसके अंदर प्लानिंग दी हुई है। तो आप देखिए कि पहला चैप्टर जो है उसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 दिनों पे आपने पढ़ाना है, इस्लामियात क्लास 5। तो डे 1 पे आपने क्या करना है, स्टोरी टेलिंग, ऑरल कम्प्रीहेंशन। डे 2 पे रीडिंग, रिटन कम्प्रीहेंशन। डे 3 पे यूजफुल नॉलेज, व्हाट वुड यू से, आप क्या कहेंगे। डे 4 यूजफुल नॉलेज, व्हाट वुड यू से, रिटन कम्प्रीहेंशन। डे 5 पे नेम ऑफ अल्लाह। डे 6 पे नेम्स ऑफ अल्लाह और डे 7 पे नेम्स ऑफ अल्लाह। तो पहले आप स्टोरी सुनाएंगे। तरीका ये है कि सबसे पहले ये आपकी किताब है, अगर ये तो है 5 की है, 4 की 4 की है, 5 की देख लेते हैं। आप सबसे पहले किताब का जो पहला लेसन है स्टोरी टेलिंग करेंगे, इसकी स्टोरी टेलिंग आप करेंगे। और वो आप तरीका आपने और जगहों पे भी देखा है कि उसको स्टोरी टेलिंग करने का एक ख़ास तरीका है। तो आप बच्चों को कहेंगे कि बच्चों आज हम फर्स्ट लेसन, सबक नंबर 1, पहला सबक शुरू कर रहे हैं, वक्त की परवास। फिर आप डे 1 पे आप इसको स्टोरी टेलिंग इसकी करेंगे। तो आप कहेंगे कि वक्त की परवास, हुज़ैफा जद्दा के हवाई अड्डे पर खड़ा था। वो खिड़की से बाहर देख रहा था, वो किसी गहरी सोच में था। उसे मालूम ही ना हुआ कि कब उसकी बहन हरीम उसके पास आकर खड़ी हो गई। हुज़ैफा, तुम क्या सोच रही हो? हरीम ने पूछा। मैं वक्त के मुतालिक सोच रहा हूँ, हुज़ैफा ने जवाब दिया। हैरत है, मैं भी वक्त के बारे में ही सोच रही थी। हरीम ने हवाई अड्डे पर लगी हुई बड़ी सी खिड़की की तरफ देखते हुए कहा। दरअसल मैं ये सोच रहा था कि जब हम खुश होते हैं तो वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है, जब हम बोर होते हैं तो वक्त रेंगने लगता है, हुज़ैफा ने कहा। तो इस तरह करके आप इसकी पूरी बच्चों को ये स्टोरी जो है ये आप उनको सुनाएंगे। जब आप उनको ये स्टोरी सुना देंगे तो ये हमारा ऑन साइड लेसन प्लान पड़ा है। इसमें से आप ऑरल कम्प्रीहेंशन करेंगे। ऑरल कम्प्रीहेंशन यानी सवाल बच्चों से खुद से सवाल पूछेंगे, खुद सोच के बच्चों से सवाल पूछेंगे, या आप ये लेसन जो है इसमें सवाल दिए हुए हैं, ये सवाल आप बच्चों से पूछेंगे। तो इसमें सवाल ये है कि हरीम और हुज़ैफा किस चीज़ के बारे में सोच रहे थे। हरीम और हुज़ैफा किस चीज़ के बारे में सोच रहे थे? जाहिर है वो वक्त के बारे में सोच रहे थे। जब हम खुश होते हैं तो वक्त क्यों जल्दी गुजर जाता है, इसकी क्या वजह है कि वक्त क्यों जल्दी गुजर जाता है? तीसरा सवाल है, जब हम बोर होते हैं तो वक्त क्यों रेंगने लगता है? हर सवाल जब आप पूछेंगे तो हर सवाल का जाहिर है बच्चे जवाब देंगे, इसका कोई एक फिक्स्ड आंसर नहीं है। ये सवाल है बच्चों की थिंकिंग को जनरेट करने के लिए, ताकि बच्चों में
सोचने का मादा पैदा हो, उन्हें सोचने का शौक पैदा हो। ये बहुत अहम सवाल है। जब भी आप ये सवाल पूछेंगे तो आप देखेंगे कि अगला लेसन जब बच्चे सुन रहे होंगे तो बहुत तवज्जो से सुनेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि टीचर ने इसके बाद ओरल कॉम्प्रिहेंशन करनी। ये सवाल इसलिए नहीं किताब में दिए गए क्योंकि इस्लाम जो है ना वो एक समझने वाली चीज़ है, उसका रट्टा नहीं लगाना। हम नहीं चाहते कि बच्चा रट्टा लगाए, हम चाहते हैं कि वो थिंकिंग डेवलप हो उनकी। इसीलिए इनके क्वेश्चंस हमने बुक में नहीं दिए, इसके क्वेश्चंस हमने लेसन प्लान में दिए हैं ताकि बच्चे दबाव महसूस ना करें। उनको ये ना हो कि हमने क्वेश्चंस के आंसर तलाश करके लिखने, बल्कि टीचर पूछे बच्चों से सवाल, पूछे टीचर, जिससे जो टेक्स्ट पढ़ा गया है उसकी थिंकिंग बिल्ड हो। अच्छा, यहाँ हम आपको ये बता दें कि क्लास 3 से 4 और 5 ये जो किताबें हैं ना, ये किसी न किसी एक मखसूस सूरत, 1 या 2 मखसूस सूरतों के ऊपर बेस करके बनाई गई हैं। मसलन क्लास 5 की जो इस्लामियात की किताब है ये वाली, ये सूरह अल-असर के ऊपर बेस करके है। इसमें सूरह अल-असर की पूरी तफसीर है। आप जानते हैं कि बड़े बड़े उलमा कहते हैं कि सूरह अल-असर जो है ना उसका मैसेज अगर इंसान को समझ में आ जाए तो उसको ज़िंदगी समझ में आ जाती है कि ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो उसी बात को ज़हन में रख के इसके अंदर सूरह अल-असर की पूरी तफसीर जो है बच्चों के लेवल पे समझाई गई है। तो मकसद ये है कि जब हम क्वेश्चन पूछें तो हमारा मकसद ये है कि हम बच्चों की थिंकिंग बिल्ड कर रहे हैं। इस्लामियात की इस किताब को आपने टिपिकल इस्लामियात की किताब नहीं समझना, बल्कि इसके लिए आप बहुत ही इनफॉर्मल होकर सोचें। आप ये ना सोचें कि निसाब की किताब है, निसाब खत्म करना है, एग्जाम होना है। इस एक किताब को आप रवायती निसाब से बहुत अलग तरह से सोचें। इसको बनाया गया है बच्चों के अंदर गहराई पैदा करने के लिए, उनका फहम पैदा करने के लिए, उनको एक बहुत ही अच्छा नफीस इंसान बनाने के लिए ये किताब बनाई गई है कि उनके अंदर कुरान का फहम पैदा होना शुरू हो जाए, ताकि उनके अंदर एक नफासत आए, उनकी पर्सनालिटी में एक पॉलिश हो, उनकी पर्सनालिटी, उनकी ग्रूमिंग हो। तो फिर आप बच्चों से ये सवाल पूछेंगे और घर पे होमवर्क आप उनको दे देंगे कि जी बच्चे जो हैं वो घर पे ये इबारत दोबारा पढ़ें, इन्हीं सवालात को सोचें, मज़ीद कोई जवाब इसके आते हैं तो वो सोचें, और इसके बाद वो कोई नए सवाल अगर उनके ज़हन में आते हैं तो वो बनाएं। आप सवाल भी तो बना सकते हैं। तो सवाल करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आधा इल्म अच्छे सवाल में पोशीदा है। तो आप बड़ी बड़ी इजादात भी दुनिया की देखें तो वो बाहर से शुरू हुई। आज हम सब जानते हैं कि आइंस्टाइन दुनिया का मोस्ट इंटेलिजेंट आदमी था, जिसने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर और बड़ी बड़ी उसने थ्योरियां पेश की हैं। और बहुत से बड़े लोग जो गुजरे हैं उन्होंने सबसे पहले वाई पूछा है, वाई, क्यों, हाउ पूछा है, कैसे। तो जितना आप गौर व फिक्र करते हैं अल्लाह की कायनात पे और अल्लाह की आयत को समझने के लिए गौर करते हैं, उतना इल्म बढ़ता है। और आधा इल्म अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अच्छे सवाल में पोशीदा है। तो आपने बच्चों को ना सिर्फ ये कि पूछे गए सवाल के जवाब सोचना के लिए कहना है घर पे, बल्कि उनको जो पहले एक दिन पढ़ा गया था उसके हवाले से जवाबात भी सोचने के लिए, हमें नए सवालात भी सोचने के लिए उकसाना है कि अच्छा चले आप सब लोग एक सवाल सोच के आइएगा। तो अगले दिन आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं कि क्या सवाल सोचा, या जो सवाल हमने किए थे उसके क्या जवाब आपके ज़हन में आए। डे 2 पे फिर इसी लेसन की, ये जो लेसन है इसकी रीडिंग हम करेंगे, बच्चों की रीडिंग डेवलपमेंट करेंगे। ये लैंग्वेज की स्किल है जो हम इसकी मदद से बिल्ड करेंगे कि बच्चों के अंदर ये रीडिंग करें, उनके अंदर पढ़ के समझना, इकरा का मादा पैदा हो तो पढ़ के चीज़ों को समझना शुरू करें, ताकि फिर आगे चल के कुरान को भी पढ़ें और कुरान फहमी का मादा जो है ना उनके अंदर बिल्ड हो।
तो डे 2 पे भी यही होगा। डे 3 के ऊपर अब हम आ जाते हैं। डे 2 पे बच्चों ने रीडिंग करी। अच्छा, चूंकि ये क्लास 5 है तो हमें पता है कि इस साइज का लेसन क्लास 5 के बच्चे सारे बारी बारी भी पढ़ें, या दो दो तीन तीन पेजेस, दो दो तीन तीन सेंटेंसेस भी पढ़ें, पैराग्राफ भी पढ़ें, तो पूरी क्लास एक दिन में रीडिंग प्रैक्टिस इसकी कर लेगी। तो यूं रीडिंग प्रैक्टिस जो है ना इसकी, वो डे 2 पे खत्म हो जाएगी। डे 1 पे आपने सुनाया, डे 2 पे आपने बच्चों को इसकी रीडिंग करने को कहा। अच्छा, रीडिंग के भी तरीके हैं। हम बच्चों को क्लास वाइज भी रीडिंग करवा सकते हैं। तो बच्चों ने पहले दिन बच्चे किताबें नहीं खोलेंगे, पहले दिन सिर्फ आप सुनाएंगे और बच्चे उनको सुनेंगे, उस लेसन को सुनेंगे। समय ना वो अताना, तो ये जो हम बाजू का समझते हैं ना कि बस बच्चे खोलें और पढ़ लें, तो अतात के लिए सुनना जरूरी है। ये कुरान का ये अल्लाह ताला का असूल है। तो पहले दिन आप उसको सुनाएंगे और बच्चे सुनेंगे और उसके एंड में क्वेश्चंस आप करेंगे और बच्चे उनका जवाब सोचेंगे। वो ऐसे सवालात हैं कि उनका ओपन क्वेश्चन है। हमें बहुत कॉल्स आते हैं, लोग कहते हैं कि इसका कोई एक लगा भंगा सा जवाब आप बताएं ना, क्या है इसका। तो हम उनको कहते हैं कि जो बच्चे ने जवाब दिया वही जवाब ठीक है। आप बच्चों को डिक्टेट करने की कोशिश मत करें। बच्चों को अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा थिंकिंग माइंड दिया है माशाल्लाह। ये जो हमारा दिमाग है ये इतनी बड़ी मशीन है कि अगर इस साइज की मशीन हम जमीन पे लगाने की, इतने प्रोसेसर लगा के कंप्यूटर बनाने की कोशिश करें ना, तो पूरा बड़े आजम ऑस्ट्रेलिया हमें प्रोसेसर से बनना पड़ जाएगा। इतना बड़ा हमें कंप्यूटर बनाना पड़ेगा। तो बच्चों को सोचने का मादा उनके अंदर पैदा करें पहले दिन। दूसरे दिन आप जब बुक खोलेंगे तो फिर जब बच्चे रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे, खुद इसको रीड करेंगे, तो उसकी कई एक स्ट्रेटेजीज है। एक स्ट्रेटेजी तो ये है कि आप क्लास वाइज एक एक दो दो सेंटेंसेस बच्चों से पढ़ा के सब बच्चों से पढ़ा लें। दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि आप दो दो बच्चों के ग्रुप बना दें, दो दो बच्चे आपस में बैठ के पढ़ें, वरना तीन तीन बच्चे आपस में बैठ के पढ़ें, वरना चार चार या पांच पांच बच्चों के ग्रुप बना दें और पांच पांच बच्चों को कहें कि भाई आपने आपस में ये बारी बारी ये लेसन पढ़ना है। तो ये मुख्तलिफ रीडिंग स्ट्रेटेजीज हैं जो आप क्लास में इसके लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं डे 3 पे। डे 3 है यूजफुल नॉलेज। यूजफुल नॉलेज यानी मुफीद मालूमात। ये देखिए, ये है मुफीद मालूमात। तो मसलन इस में ये कहा गया है इस चैप्टर का कि मुफीद मालूमात ये है कि कुरान में बताया गया है कि अल्लाह ताला ने दुनिया को 6 दिन में बनाया है। जदीद तहकीक के मुताबिक कायनात तकरीबन 13 बिलियन साल कदीम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की दो नेमतें हैं जो इंसान ज़ाया करता है, एक वक्त और दूसरी सेहत। तो ये आप बच्चों को बताएंगे और उनसे इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं, और फिर इसको बताने के बाद फिर वो कम्प्रीहेंशन के जो सवाल हैं उस चैप्टर से निकाले, फिर हम उसके ऊपर आ जाएंगे। और वो ये है कि आप क्या कहेंगे, पौधों के वक्त का तयन हम किस तरह कर सकते हैं। नंबर 2, अल्लाह ने अपनी बनाई हुई चीज़ों के लिए मुख्तलिफ वक्त क्यों मुकर्रर किए हैं। नंबर 3, आप कितने किस्म के गैर इंसानी औकात वक्त के बारे में मतलब सोच सकते हैं, उनकी फहरिस्त बनाइए। क्या आप अपने इर्द गिर्द के माहौल की किसी चीज़ से नया वक्त बना सकते हैं। तो ये वक्त के बारे में जैसे हमने कहा था सूरह सब की है ये तफसीर, तो हम वक्त के बारे में बच्चों से डिस्कस करेंगे। पहले मुफीद मालूमात बताएंगे, उसके बाद आप क्या कहेंगे, यानी व्हाट वुड यू से। तो ये आप डे 3 पे ऑरली करेंगे। ये जो सवाल है, ये जो डिस्कशन है, ये ऑरली हो रही है। डे 2 पे बच्चों ने रीडिंग की थी। डे 3 पे एक दफा फिर बच्चों के पास बुक बंद है और आप बच्चों से ये सवाल कर रहे हैं, आप बच्चों से ये पूछ रहे हैं कि ये यूजफुल मुफीद मालूमात और ये दूसरी चीज़ आप क्या कहेंगे, व्हाट वुड यू से। ये वर्बल डिस्कशन हो रही है। ये करने के बाद आप
डे 4 के ऊपर बच्चों को यही सवाल दे के रिटन लिखने की प्रैक्टिस कराएंगे, राइटिंग की प्रैक्टिस बच्चे करेंगे। जो जवाब उन्होंने पिछले दिन डिस्कस किए होंगे वो उसको कॉपी में लिखेंगे। यानी आप क्लास में आए, आपने कहा अच्छा जी पौधों के वक्त का तय्युम हम किस तरह कर सकते हैं, हमने ये सवाल कल डिस्कस किया था और बड़े डिटेल में सब लोगों ने अपनी राय दी थी। अच्छा ये देखिए डे 3 पे जब आप वर्बली ये पूछेंगे ना, तो जैसे मैंने पहले कहा आपने बच्चों से मैक्सिमम जवाब जो है ना उनसे लेने हैं, बच्चों से मैक्सिमम जवाब लेने हैं, सबकी राय लेनी है, सबकी राय का एहतराम करना है और खुद हल्का सा मुस्कुराते रहना है या तजस्सुस से देखना है। जैसे आपने कहा जी अली आप क्या कहते हैं, जी उमर आप क्या कहते हैं, जी उस्मान आप क्या कहते हैं, जी खतीजा आप क्या कहती हैं, अच्छा 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 आपका ये ख्याल है कि वक्त जो है वो ऐसे, जी आप क्या ख्याल है आपका, बताइए क्या कहते हैं। तो ऐसे क्लास में पॉइंट कर करके बच्चों से आपने ऑरली पूछना है, किसी जवाब के ऊपर नाराजगी का इजहार नहीं करना, ठीक है। क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम जो दीन फितरत है, तो बच्चे इस्लाम के पैराए में, इस्लाम के पैरामीटर में रह के सोचना शुरू करें, इस्लाम के फ्रेम में, इस्लाम की बुनियादों के ऊपर खड़े होकर दुनिया को देखें और सोचें, उनके अंदर सोचने का मादा पैदा हो। हमारा दीन इस्लाम मबनी ही सोच के ऊपर है। दूसरे मज़ाहिब की तरह जहाँ उनके दीन के अच्छा फॉलोअर बनने के लिए सोचने पे पाबंदी होती है, इस्लाम में अच्छा मुसलमान बनने के लिए सोचने की ज़रूरत होती है। तो हम बच्चों को सोचना सिखाना चाहते हैं और उसके लिए सिर्फ इंकरेजमेंट करनी है, तनकीद क्रिटिसिज्म नहीं करनी। मसलन ये नहीं कहना ये आपने क्या बात की है, कितनी गलत बात की, नहीं बेटा ऐसे नहीं होता, नहीं या ना 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 ऐसी बातें नहीं करें, ऐसे अल्लाह मियां नाराज होते हैं, ये इस किस्म के जुमले नहीं बोलते। तो डे 3 के ऊपर बच्चे जो हैं वो ऑरली इन सवालों के जवाब दे रहे हैं जो ये बुक के अंदर दिए गए हैं। डे 4 के अंदर आपने जल्दी से एक सवाल पूछना है, बच्चों ने जल्दी से उसका आंसर रिव्यू करना है जो उन्होंने दिया था, और फिर आपने कहना चलिए भाई अब इस सवाल का जवाब आप कॉपी में लिखिए। तो बच्चे ये खोल सकते हैं, ये सवाल वो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, आपको बोर्ड पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बोर्ड पे मत लिखिए। और जो आंसर्स डिस्कस हुए हैं वो बच्चों को लिखने को कहें कॉपी में, जो आंसर्स डिस्कस हुए हैं। दोबारा ये मत करें कि जी बच्चे यहाँ इस उस पे जाएं पेज पे और वो यहाँ से ना वो लाइनें लगा के और अंडरलाइन करके करें। बच्चे खुद से जवाब लिखें, वो खुद से ये जवाब देने के काबिल हो जाए। ये हो गया जनाब हमारा डे 4, और उसके बाद आ जाते हैं हम डे 5 के ऊपर, और सेम वे डे 6 है और सेम वे डे 7 है। इस पेज के ऊपर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अल्लाह ताला के नाम दिए गए हैं। अल्लाह ताला के जो नाम है वो तौहीद की बुनियाद है। हम सबको पता है कि दीन इस्लाम की बुनियाद तौहीद है, दीन इस्लाम की बुनियाद तौहीद है, और तौहीद की जो बुनियाद है वो अल्लाह ताला के 99 नाम है। यानी अगर आपने इस पूरी कायनात को, इंसान को, हर चीज़ को समझना है तो आप अल्लाह ताला के 99 नामों को समझ लें, और आपको कुरान भी बड़ी हद तक समझ में आ जाएगा, इस पूरी कायनात में जो कुछ हो रहा है वो भी समझ में आ जाएगा, लोगों के रवैये भी समझ में आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको इन 99 नामों से समझ में आ जाएंगी। तो अब आपने डे 5 के ऊपर 3 जो अल्लाह ताला के नाम हैं उनको डिस्कस करना है। अल-बासित, अल-हाफिज, अर-राफि, ये 3 नाम हैं। तो आपने बच्चों से कहना है जी आज जो हम नाम अल्लाह ताला का डिस्कस करेंगे इन 3 क्लासों में वो है अल-बासित। अल-बासित का मतलब है रोज़ी कुशादा करने वाला। चलें सब बच्चे मेरे साथ बोलें, ये अब मेरे साथ प्रैक्टिस करें। अल-बासित,
الباسط، الباسط، بچوں سے آپ نے پریکٹس کروانی پروننسیشن کی، اور یہ اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ ایگزیکٹ پروننسیشن ہو، ٹھیک ہے ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کوشش نہ کریں اور یہ پارٹ مس کر دیں، آپ کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ کا تلفظ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت دفعہ اسماء الحسنی آج کل تو یوٹیوب پہ ہر جگہ بار بار ہیں، مختلف جگہوں پہ آپ 99 نیمز آف اللہ گوگل میں سرچ کریں گے تو آپ کو یہ 99 نیمز کی ویڈیو مل جائے گی، آپ 2 4 8 دفعہ سنیں تو آپ کو بھی یہ سارے نام آ جائیں گے، آپ کا تلفظ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو روزی کشادہ کرنے والا، اس کا مطلب ہے روزی کشادہ کرنے والا۔ اب آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ آج کا یہ جو 5th ہمارا پیریڈ ہے نا، ڈے 5 یا 5th پیریڈ جیسے بھی آپ اس کو کہنا چاہیں، تو اس میں ہم 3 اسماء الحسنی ڈسکس کر رہے ہیں، اور ڈسکس یہ ایسے کر رہے ہیں کہ پہلے ہم نے الباسط یہ بولا اور روزی کشادہ کرنے والا، پھر ہم بچوں سے ڈسکس کریں گے بچوں آپ کیا سمجھتے ہیں روزی کشادہ اللہ تعالیٰ کیسے کرتا ہے، انسانوں کی کیسے کرتا ہے؟ آپ کے پاس کیا کوئی مثال ہے کہ ایسے لوگوں کی کہ جو غریب تھے، جن کے پاس کھانے کو نہیں تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے کو دیا، جن کے پاس کوئی چیزیں نہیں تھیں، کوئی گھر اچھا نہیں تھا، تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے کو دیا؟ جو غریب لوگ آپ دیکھتے ہیں جو کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کھانے کو دے دیتا ہے۔ پھر آپ پودوں پہ آ جائیں، اللہ تعالیٰ پودوں کو کیسے رزق دیتا ہے، پھر آپ کیڑوں پہ آ جائیں، پھر آپ جانوروں پہ آ جائیں، کبوتر پہ آ جائیں، بلی پہ آ جائیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، چونٹیاں، مکھیاں، شہد کی مکھی، ان پہ آ جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو کیسے رزق دے رہے ہیں، ان کے لیے کیسے زمین میں کشادگی ہے کہ وہ جگہ جگہ جاتے ہیں اور وہ رزق تلاش کرتے ہیں۔ اب آپ بچوں کی آبزرویشن، ٹھیک ہے، تو یہ اب بچوں کا جو دیکھنے کی ایبلٹی ہے، انالیسس کی جو ایبلٹی ہے، اسلام جو ہے نا وہ تو ایک سائنٹیفک مائنڈ چاہتا ہے نا، اسلام جو ہے وہ سائنٹیفک مائنڈ چاہتا ہے، اسی لیے قرآن کے آنے کے بعد دنیا تاریکی کے دور سے نکلی تھی، کیونکہ انسان قرآن کے آنے تک دنیا کے تقریباً تمام علاقے کمپلیٹ تاریکی میں تھے، جاہلیت میں تھے، تو قرآن نے انسان کی سوچ کی جو گراریاں ہوتی ہیں، جو موٹر ہوتی ہے، اس کو چلایا تھا۔ تو انسان سائنٹیفکلی اگر انسان سوچے گا تو وہ لا محالہ، اگر اس کے اندر بہت سے نہیں ہے نا، اگر اس کے اندر ایک ہارڈنس نہیں ہے کہ وہ انفلوئنسڈ ہو گیا ہے غیر ضروری تھیوریز سے، تو اگر اس بالکل صاف دل کے ساتھ ایک سائنسی دماغ چلے گا نا تو وہ لا محالہ اللہ کی طرف پہنچے گا، اس کو لا محالہ اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔ تو آپ بچوں سے جیسے ہی کہیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں کیسے رزق کی کشادگی پیدا کی ہے، اس کی مثالیں دیں، آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ بچے اتنی خوبصورت مثالیں لے کے آئیں گے جو انہوں نے اپنی نیچر میں آبزرو کی ہیں، تو پھر آپ بچوں سے وہ فیڈ بیک لیں گے۔ اچھا یہاں پہ آپ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آپ کے پاس ایک پورا پیریڈ ہے، ایک پورا پیریڈ ہے جس میں آپ نے 3 ناموں کو ڈسکس کرنا ہے، 3 ناموں کو ڈسکس کرنا ہے، یعنی 30 منٹ کا پیریڈ ہے تو 10 منٹ ایک نام پہ، 10 منٹ دوسرے نام پہ، 10 منٹ تیسرے نام پہ، تو آپ نے ایک ایک پڑھ لینا ہے۔ الباسط روزی کشادہ کرنے والا، پھر یہ کتاب ایسے رکھ دینی ہے، نیچے آپ نے رکھ دی، کتاب ہاتھ میں مت پکڑیے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ میں جلدی سے سلیبس ختم کروں۔ صرف یہ جو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ صرف جو اسلامیات کی ہماری کتاب ہے نا ایسٹ کی، اس کو سلیبس مت سمجھیے، اس کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی کتاب سمجھیے، باقی سارا سلیبس ہے، اور انگلش ہے، اردو ہے، میتھ ہے، سوشل سٹڈیز ہے، سائنس ہے، آپ اس کو جیسی مرضی سلیبس سمجھ کے پڑھا لیں، لیکن اسلام کی کتاب کو آپ نے ڈسکس کر کے ایک ایک سٹیج کے اوپر گفتگو کر کے، مائنڈ کو کھول کے، مائنڈ کو اوپن کر کے، اس کے اندر پوری طرح سے انسان کا مائنڈ ورک کرے، آئیڈیاز اس کے اندر جنریٹ ہو، اس کی آبزرویشن پاور بلڈ ہو، اور وہ دنیا کو قرآن اور اسلام اور اسماء الحسنی کا چشمہ لگا کے دیکھے، ٹھیک ہے؟ تو خرد دیکھے اگر دل کی نگاہ سے،
جہاں روشن ہے نور لا الہ سے، تو انسان جو ہے نا وہ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی کار فرمائی دیکھے گا، اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھے گا۔ تو آپ الواسط کہہ کے میننگ لے کے ایک آدھ کوئی بات اپنی لائف سے اور جرنل پرسنل شیئر کر کے اب بچوں سے فیڈ بیک کریں۔ جب وہ بچوں سے فیڈ بیک لیتے ہیں نا تو ایک بہت بڑا ایشو جو ہم نے آبزرو کیا ہے، ہم بچوں کو تھنکنگ ٹائم نہیں دیتے۔ ہم سوال، اچھا جی کیا مثالیں ہیں آپ کے پاس، جلدی سے بتائیں۔ بھائی جلدی سے نہیں بتائیں، سوچ کے بتائیں، آرام سے سوچیں، سب بچے سوچیں اور پھر مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے روزی کشادہ کرتا ہے، کیا آپ نے دیکھا ہے جانوروں میں، لوگوں میں، پرندوں میں کیسے روزی کشادہ ہوتی ہے، کیسے کھانے کو چیزیں اللہ تعالیٰ پرووائڈ کر رہا ہے لوگوں کو۔ تو 10 منٹ تک آپ نے اس اسماء حسنہ میں سے ایک اسم کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے۔ جتنا زیادہ یہ 30 منٹ کے جو منٹ ہے نا آپ کو یہ 3 اسماء حسنہ کے لیے ملے، یہ بچے کی لائف چینجنگ ٹائم ہے، لائف چینجنگ ٹائم ہے۔ اگر اس ایک سال میں، آپ ذرا تصور کیجئے، اس ایک سال میں کسی ایک پیریڈ میں اگر بچے کو کوئی ایک 99 اسماء حسنہ میں سے کوئی ایک بھی تھنکنگ کر کے، اور اس نے کوئی مثالیں سوچی یا کسی کی ایک دوسرا بچہ بولا تو اس نے اس کی مثال سنی تو اس کے بعد اس نے ایسے سوچنا شروع کیا، اگر یہ سوچ لے گا وہ اور اس سے اس کی پرسنالٹی میں چینج آ جائے گی، اور وہ بچپن کی ہوئی چینج کی وجہ سے وہ ایک نیا پرسن نکلے گا، اس کی پرسنالٹی میں ایک نئی دنیا آ جائے گی، تو اب سوچئے کہ ہمارے لیے، آپ کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ وہ چند منٹ ہو جائیں گے جس میں ہم نے اس بچے کو اس اسماء حسنہ کی مدد سے دنیا کو دیکھنا سکھا دیا، چیزوں کو آبزرو کرنا سکھا دیا۔ تو آپ نے 30 منٹ 3 اسماء حسنہ پہ صرف کرنے ہیں۔ یہ ہوتا ہے پھر ہمارا ڈے 5۔ ڈے 6 پہ اسی طرح ہم نے اگلے 3 کرنے ہیں، پھر اگلے 3 آ جائیں گے 1 2 3، اور ڈے 5 پہ پھر ہم 4 کر لیں گے، 1 2 3 اور 4۔ تو ڈے 5 پہ 3، ڈے 6 پہ پھر 3، اور ڈے 7 پہ پھر 4 اسماء حسنہ ہم بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور یوں 7 دن میں یہ چیپٹر ختم ہو جائے گا، ہم نیکسٹ چیپٹر پہ جائیں گے۔ اچھا، اسماء حسنہ کے حوالے سے ہمارے لیسن پلان میں آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملے گی، کافی سارا مٹیریل ہے کہ جو ہم نے اس میں دیا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے یہ آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے 99 نام القدوس، کن کن صورتوں میں کہاں کہاں یہ ورڈ آیا ہے، یہ آپ کو یہاں پہ ریفرنس ملے گا کہ سورہ حشر میں آیا ہے، سورہ الجمعہ میں آیا ہے، اس کے معنی ہے مقدس، پاک، اس کا مادہ جو ہے قاف واو سین ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدہ میں یہ پڑھتے تھے۔ اب دیکھیے کتنی یوزفل انفارمیشن ہے کہ القدوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رکوع اور سجدہ میں پڑھتے تھے۔ تو یہ انفارمیشن آپ بچوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، دیکھیں کتنی مزے کی چیز ہے جو آپ بچوں سے شیئر کریں گے۔ اسی طرح المالک، تو یہ سورہ فاتحہ میں آیا ہے، مالک یوم الدین، اس کا مطلب ہے روز حساب کا مالک، عظیم حکمران، مادہ ہے میم لام کاف۔ سورہ مومنون میں آیا ہے، سورہ آل عمران میں آیا ہے، سورہ حدید میں، یعنی آپ بچوں کو سورہ المومنون کی 116ویں آیت کا ہوم ورک دے سکتے ہیں۔ جائیں گھر پہ سورہ المومنون آیت نمبر 116 کھولیے اور دیکھیے کہ اس میں المالک جو ہے اس کا کیا یوز ہے، اس آیت کا ترجمہ لکھ کے لائیں، اس آیت کا ترجمہ لکھ کے لائیں جس میں سورہ المومنین کا آیت نمبر 116 جس میں المالک یوز ہوا ہے۔ ایک طرح کا ریسرچ ورک کہ بچے قرآن کھولیں اور تلاش کریں۔ تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے آپ کو اس لیسن پلان میں ہر اسماء حسنہ کے حوالے سے، اسم حسنہ کے حوالے سے
रेफरेंस मिलेगा कि हदीस में कहाँ इस्तेमाल हुआ है और कुरान में कहाँ इस्तेमाल हुआ है। तो रोज़ आपने बच्चों के साथ इन 3 दिनों में 3 फिर 3 और फिर 4 डिस्कस करने हैं, और यूं ये पूरा लेसन प्लान जो है इस्लामियात का ये कंप्लीट होगा। प्री कह रहा हूँ, क्लास 1 का थोड़ा सा इससे आसान है। ये आपने पहले ये इबारत बच्चों के साथ पढ़नी है, बाद में बच्चों के साथ पहले स्टोरी टेलिंग करनी है। जैसे पहले हमने की थी, बच्चों के साथ स्टोरी टेलिंग की, ये सारा बच्चों को सुनाया। ये पिक्चर कम्प्रीहेंशन भी आपने करनी है कि ये आप पिक्चर दिखाएंगे बच्चों को और बच्चे इसकी पिक्चर कम्प्रीहेंशन करेंगे। आप कहेंगे बच्चों को, देखें बच्चों उस पर क्या बना हुआ है, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है अल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमें रिस्क देता है। सुभान अल्लाह, कायनात की हर चीज़ अल्लाह ताला ने पैदा की है, उसने ये सितारे बनाए हैं। तो ये सारा टेक्स्ट आपने दिखाना भी है, और जहाँ जहाँ आपको लगे कि अब मैं इसको पढ़ के सुनाऊं, तो आपने इसको पढ़ के सुनाना है। फिर आपने नीचे जो हदीस दी हुई है, जो इबादत या आदाब दिए हैं, वो आपने एक्सप्लेन करने हैं। तो आपने कहना है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो लोग खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं उन्हें अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। और बच्चों, अगर आप लोग तुम लोग अल्लाह पर ईमान रखते हो तो किसी से ना डरो। जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं ना, तो वो किसी से नहीं डरते। तो ये एक काम आपने करना है, ये तस्वीर दिखानी है, इसको डिस्कस करना है। उसके बाद आपने तस्वीर दिखाने है, डिस्कस करने के बाद फिर इस एक्टिविटी पेज पे जाना है। वंस अगेन पहले इसको वर्बली डिस्कस करें, जुबानी थोड़ा थोड़ा, और फिर बच्चों से उसकी मशक करवाएं। मसलन हम सुबहान अल्लाह कहते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने चीज़ों को बहुत खूबसूरत बनाया है। हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, इससे अल्लाह ताला अच्छी चीज़ों में इजाफा करता है। हम अल्लाहु अकबर कहते हैं, इससे अल्लाह ताला हमें तरक्की देने में मदद देता है। और फिर ये एक्टिविटी है, अरबी के अल्फाज लिखें। बच्चों देखें, अब आपने अरबी के अल्फाज लिखने हैं। अल्लाह ताला पहाड़ पर चढ़ने में हमारी मदद करता है, अल्लाहु अकबर। तो यहाँ पे आपने अल्लाह अकबर लिखना है, ठीक है। इसीलिए जब आप पहाड़ पे चढ़ते हैं ना ऊपर बच्चों, तो आप साथ साथ अल्लाह अकबर कहते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये कहते कहते आप पहाड़ पे चढ़ते हैं, तो उससे फिर आपको पहाड़ से डर नहीं लगता, क्योंकि आपको पता होता है कि अल्लाह ताला इस पहाड़ से ज़्यादा ताकतवर है। और आप फिर पहाड़ पे चढ़ते चले जाते हैं, वो तरक्की होती है, आप और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा जाते हैं। तो यहाँ पे आपने अल्लाह अकबर लिखना है। तो इसी तरह ये आप एक्सप्लेन करेंगे, फिर बच्चे इसको करेंगे, फिर आप अगला पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। पार्ट्स में एक्सप्लेन करें, फिर ये पार्ट बच्चे को करने को दें, फिर अगला एक्सप्लेन करें, फिर ये करने को दें, फिर ये अगला एक्सप्लेन करें बच्चों को, फिर ये बच्चों को करने दें, और फिर आखिर में ये बच्चों से करवाएं। तो थ्रू एक्टिविटी छोटे छोटे पार्ट्स को एक्सप्लेन करते जाएं, फिर बच्चों से वो करवाएं। एक पार्ट को एक्सप्लेन करें, ये एक पार्ट है, और बच्चों से करवाएं। फिर एक पार्ट एक्सप्लेन करें, फिर बच्चों से करवाएं। फिर एक पार्ट एक्सप्लेन करें, फिर बच्चों से करवाएं। और इस तरह आप थ्रू एक्टिविटी ये सारी की सारी किताब जो है ये बच्चों से कंप्लीट कराएंगे, और यूँ आपका पूरा इस्लामियात का जो लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस सिलसिले में जब भी आपको किसी किस्म का कोई मशवरा करना हो या हेल्प चाहिए हो या कोई आइडियाज़ हों जिससे इसको इम्प्रूव किया जाए, तो ज़रूर हमसे रब्ता करें। east.education पे आप कमेंट्स दे सकते हैं, या आप अपने मैनेजर से बात कर सकते हैं, और वो मैसेज इंशाल्लाह हमें मिल जाएगा, या हमारे जो हेड ऑफिस है उसके नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और हम डायरेक्टली आपके सवालों का जवाब देंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।